Okay. I already taught you regarding the method, how to create method, how to call this method, ठीक है, different methods. So now let me know who will tell me the first that how to create function, okay, and how to call it. Who will be the one amongst you? Yes. Yes, Sir, walk and then parenthesis. वाक के साथ parenthesis लगाएंगे. ओके और तो उसके बाद उसकी जो कंडीशन होगी वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे नीचे. कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंडीशन रखेंगे या जो भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है. नॉर्मली में स्टेटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है. आप स्टेटमेंट में अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंडीशन एवरीथिंग जो भी अभी तक आपने पढ़ा है. लूप पढ़ गया, इफ पढ़ गया, स्कैनर पढ़ गया, सारे अंदर लगा सकते हो, ठीक है. स्टेटमेंट. ओके. एनीवन एल्स? क्या ये कंप्लीट है? शायद मुझे जवाब दिया था ये. कोई और है जो मुझे बताएगा कि हाउ टू क्रिएट फंक्शन एंड हाउ टू कॉल इट, क्योंकि आंसर जो है अभी तक अधूरा ही है. Yes, anybody else yet now? कोई नहीं है, क्यों? देखो अभी तुम दम लगे पड़े हो. हाँ, पेपर में क्या होगा? हालांकि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में असाइनमेंट तुम लोग मेरी कर रहे होते हो. शाबाश. यहाँ पर ये सर जिस ब्लॉक में हम कोड कर सकते हैं. हेलो जी जी. सर, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, उसके अंदर जो हम पैरामीटर्स लिखते हैं उसको हम फंक्शन कहते हैं. ठीक है, कोई और? शाबाश. कोई और ट्राई करेगा? कि फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि टुडे ऑल अबाउट इज नॉट अबाउट हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन. फंक्शन बनाना आता है, कॉल करना आता है, यू ऑलरेडी नो, ठीक है. मैंने लास्ट में बताया था हाउ टू क्रिएट मल्टीपल फंक्शन, मतलब बहुत सारे और फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ तक ये भी मैंने बता दिया था. सो जस्ट आई वांट टू नो कि हाउ मच यू हैव ग्रैप, बिकॉज आई विल नॉट रिपीट दैट लेक्चर श्योरली, ठीक है. ये तो समझो कि तुम लोगों की बड़ा फ़ायदा है कि वो वीडियो अपलोड हो रही होती है वहाँ पर, ठीक है. अदरवाइज क्लास में लेक्चर किया तो क्या, यही सिर्फ एडवांटेज है यूट्यूब का. चलें, मैं आई डोंट नो. जी बेटा. यस. ओके. सो वेल, द थिंग इज दैट व्हेन आई आस्क यू, आप समझे नहीं समझे, आप बोलते हम समझे, ठीक है. उसके बाद आप रिप्लाई नहीं देते, दैट्स अपॉन यू, कि आप जो है समझने के बाद भी जो है जवाब नहीं देते, दैट्स नो अपॉन यू. So well, create more than one method. I think I already told you that how to create these methods. Okay, I told you that how to create method. Okay, you have to give a return type and definitely the name of the method and then parentheses, and the parentheses come with the, if there's nothing in the parentheses we call it non-parameterized, and we give something in the parentheses we can call it parameterized simply. Okay, non-parameterized or no parameterized, and if we are giving parameters then we can normally say it's parameters now. Okay, so and after that we have to show these kind of message inside the curly brackets. Okay, these are the blocks, as you know that. So how to call that method, I already told you. You have to create an object of that class and then call it. And how to call it, you know that, simply using that object. So now if I want to attach, or I want to create another method, just to write walk talk, take a white talk, and same signature which we given for this, and the same way I have created another method. Okay, so inside it I'm putting some kind of a statement there. Let's suppose I'm here putting writing or typing system.out. Okay, inside whatever I write, it's upon you.
So now I write in here, edit in here, I can't talk. Okay, I can talk, sorry. Okay, so how to call that method? Just simply just by this object, I have to write this object, and this dot is used to create or used to access different type of members. Okay, I told you that method is one of the member, and before that the member was fields. Okay, fields or attributes, and attribute field belongs to the data type. Whatever, whenever we create a data types, whenever we create any variable, we have to mention as that they are the members, they are the fields actually. Okay, and both when sometimes both conclude as a members, method and fields. Well, method data types. Okay, so now we have to call by an object. We just write in here my brand, and my brand here is object name or variable or reference variable, and with the dot we call the talk method. Okay, now this method can be called in here. So well, I told you how to execute. मैंने बताया था कि compiler उसको किस तरह read करेगा. So just to, I think everybody grabbed that day, and nobody was say कैसे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया. Okay, so hope so. So now in our screen we can see, we can observe that there can be written that I can walk and I can talk. ठीक है ना? And how it possible? Just because of this method calling. ठीक है? Method is calling now walk, and then second their talk. Okay, if I'm changing the position, let's suppose if I'm doing in here, what will happen? Who will tell me? If I'm doing this, what will happen? The message will be same, or it somehow changed position. Yes, who will tell me what will the answer? सर जो है ये ऊपर टॉक आएगा फिर नीचे वॉक. Okay, everybody agree with him? सर सेम होगा. Same होगा? सर सेम होगा. Same होगा? I can walk, I can. I can walk, I can talk. यही होगा मैसेज? यस सर. Okay, well, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, just because we have calling, I told you that this man, when the compiler come to here and read talk method, okay, checking the talk method and go to the talk where is written the talk method. Okay, so it will go to here and check there's a method written correctly, function written correctly. So what it will come inside their method, and whenever it comes, it will check there's a statement over there. Okay, definitely the statement is I can talk, so it definitely it will write either I can talk. Okay, can't write walk. Why will write walk? Because the method is after that talk. Okay, this method is before and this method is after that talk. So definitely the compiler not reading yet this, है ना? ऐसे होगा ना, कंपाइलर तो अभी तक ये रीड किया हुआ है, ये तो रीड ही नहीं किया. जब ये रीड किया हुआ है तो इस मेथड के अंदर आएगा, रीड करेगा, एंड देन मैसेज टॉक यहाँ हो जाएगा. फिर जब कंपाइलर यहाँ पर आएगा, इस यहाँ पर इस पोजीशन पे आएगा, तो क्या होगा, तब वॉक मेथड पे जब चढ़ेगा तो जब वॉक में देखेगा तो यहाँ पर वॉक मेथड को आएगा, देखेगा वाकई ये वॉक मेथड मिल गया इसे. उसके बाद वॉट एवर द इनसाइड दैट ब्लॉक वो रन हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखना आना चाहिए था हमारे पास अब वॉक. सिंपल इज दैट. I told you the compilation that आपने बिल्कुल सही कहा था. I think this मुझे मिलना. जी. Yes, you are correct. ठीक है. So well, so this was we have to create different two method, and as well how to call it you already know. So as well the same way, if you want to write a name, how to write I want to see this Imran. I told you how to, I want to see this Imran, how to create Imran now. Just to write where I can write, you can say अगर मैं चाहता हूँ कि if I want to see this Imran, okay, written on the screen, how it's possible now? Who will tell me? सर एसओपी के आई अंदर के जो है ये आई की जगह पे इमरान लिखेंगे. सर आई की जगह इमरान लिखेंगे. के इमरान लिखेंगे. ठीक है, एसओपी के अंदर समन से के एसओपी के अंदर इमरान लिखें. कोई और तरीका भी है? चलें, ये एक तरीका आपने मुझे बताया कि सर जो है एसओपी के अंदर इमरान लिख लें. और कोई तरीका है? शाबाश. सर इमरान को कोई वैल्यू दे दें, मींस
इमरान को कोई वैल्यू दे दूं? जी सर, मीन्स के इसको एंटीजर इमरान इज इक्वल सर, टू ऐसे जी क्या? जी जी सर ये जो इसको इमरान अगर देना है तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग की जगह हम आई टाइप करके इमरान लिख देंगे। हाँ शाबाश शाबाश, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जी लेकिन फिर जो एसओपी के अंदर जो जो क्या नाम है, कॉमास के अंदर है ना, इसको प्लस करेंगे फिर आई शाबाश, जो एक्सेलेंट स्ट्रिंग हम लेंगे। एक्सेलेंट। वो तो इंटीजर ही लगा रहा है ना, वो टीचर लगा के इमरान लगा के आगे कैंटॉक लगा देंगे और इसके अंदर जो है ना इमरान को प्लस करके कैंटॉक कर देंगे एसओपी के अंदर। शाबाश। मगर इंटीजर नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा, इंटीजर क्यों नहीं नहीं लगाए? स्ट्रिंग लगेगा, स्ट्रिंग। हाँ स्ट्रिंग लगेगा, ठीक है ना, इंटीजर नहीं लगता। इंटीजर वी कांट ऐड विद नेम विद द इंटीजर, ठीक है ना। द डेटा टाइप इंटीजर बिलोंग्स टू नंबर्स। सो वेल, तो किसने कहा कि सर डेफिनेटली सर आपने कहा कि ये वेरिएबल में डाल देते हैं। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट तो मुज़म्मिल एंड अदर स्टूडेंट्स एज वेल। जैसे जो इमरान है वो किसी वेरिएबल के अंदर डाल दें और वेरिएबल को प्लस साइन लगाते हुए वी कैन अटैच दिस एज इन दिस मैनर। Okay, and surely I have to create a string, okay, and then name of the variable, okay, and then inside I can give the value Imran, and definitely now change, I definitely have to change this as well, no? So I have to change this variable as well. So now ये सही है बेटा? Yes, ये तरीका सही है? यस सर। Okay, so this is the correctly manner to write a method inside. Okay, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी वेरिएबल में रखूँ तब भी आपने बता दिया, और किसी को आपने कहा पहले कि सर कोटेशन के अंदर लिखते हैं, वो भी हमने करके देख लिया, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे अब वो जब मैं आपसे सिंपली सवाल करूंगा, जब पेपर में सवाल किया जाता है ना, तो यहाँ तो सवाल के अंदर वो चीज़ मेंशन की जाती है। अगर वो मेंशन नहीं है तो बच्चे पूछते सर इसके इंसर्ट करें या बाहर लिखें, वो आपकी मर्जी हो जाती है, क्योंकि आपको जो भी आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सवाल किया जाए ना कि इमरान स्क्रीन पर दिखा दो, तो आपकी मर्जी भाई कोटेशन पे दिखा दो, आपकी मर्जी स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर लिखा दो, ठीक है ना, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। मगर द वे दैट यू नो कि ये भी एक तरीका है जिसके जरिए हम लिख सकते हैं, ठीक है। वेल, सो नाउ कंप्लीटली दिस मैनर। आप अब कोई और तरीका भी है, वी हैव टू अप्लाई अनदर वे, कि वो कैसा है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, आपने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेथड जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड थे। द मेथड यू हैव स्टडीड येट इज आर ऑल नॉन पैरामीटराइज्ड। नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द मेथड व्हिच कंटेन नथिंग इनसाइड हियर। ओके, this method nothing in here. Okay, there's nothing in here, we call it, these methods are non parameterized. Okay, if I put in here, how can I make a parameterized, पहले तो मुझे समझना है कि पैरामीटराइज्ड मैट्रिक्स को मेथड या फंक्शन को बनाते कैसे, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मैं इनसाइड ऐसे लिखूंगा जिससे ये मेथड पैरामीटराइज हो जाएगा। चलें, तो कॉन्सेप्ट आता है बिल्कुल सिंपल, ऑलरेडी यू ग्रैब देखते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे एक डेटा टाइप, ठीक है, और यहाँ उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे, सिंपल ये हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, सिंपल डेटा टाइप देंगे और एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, ये हो जाएगा। डेटा टाइप आपको लिखना आता है, वेरिएबल आपको आता है, तो यहाँ पर सिंपल वो चीज आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट, सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप आई पुट है, कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है ना। मैं आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हो। तो लेट्स अभी, और अगर आप एक और कॉन्सेप्ट देता तो, ये तो आपने कहा कि सिंगल, ठीक है ना। अगर आप दूसरा भी डेटा टाइप लगाना चाहते हो तो आप कामा लगाओगे और दूसरा लिख दोगे, ठीक है ना। मतलब क्या करोगे आप, कामा लगा के, वही तरीका, डेटा टाइप और क्या है, वेरिएबल का नाम, ठीक है ना, सिंपल इज दैट। तो बात समझ में आ रही है कि किस तरह करना है। पहले हम सिंगल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सर हम सिर्फ फिर सर इसमें जब वही टास्क है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, मींस इसमें कुछ नहीं है, ओनली पंक्चुएशन है, क्या कहते हैं इसको, कामा में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, तो ये नॉन पैरामीटर है। हाँ, कुछ नहीं है तो नॉन पैरामीटर से, एंड देयर समथिंग इनसाइड इट वी से पैरामीटराइज। मगर कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर डिक्लेरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने कोई वैल्यू नहीं दी, आपने डिक्लेरेशन की है। क्या किया आपने, अभी तक डिक्लेरेशन की ना, आपको पता है ना डिक्लेरेशन करते हैं, व्हेनेवर यू गिव द डेटा टाइप एंड वेरिएबल वी कॉल्ड इट डिक्लेरेशन। तो कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, इनसाइड क्या कर रहे होते हो, डिक्लेरेशन ही कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, बात समझ में आ रही है मुझे। आप बताए, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही कंपाइलर आएगा, ओके, पहली स्टेटमेंट को रीड करेगा, सेकंड को ऐसे रीड करेगा, देखिएगा
रीड करेगा मगर चलाएगा नहीं, क्योंकि चलाना जो है ना यहाँ से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेन प्रोग्राम से इसको चलाना है। कंप्यूटर में जो भी दिखाना है वो यहाँ मेन प्रोग्राम मेन मेथड के अंदर वाला काम करेगा। यहाँ से चेक करेगा इसका सेंटेक्स कि लिखा सही है बंदे ने, भाई सही लिखा है, वाइड का वर्ड भी सही लिखा है, टॉक भी सही लिखा है, जो स्टेटमेंट है उसकी स्पेलिंग भी सही है, ठीक है, ब्रैकेट भी अपनी जगह पर सही है, ये चेक करेगा। ठीक, उसके बाद आएगा मेन मेथड, या हम ये से भी कह सकते हैं सबसे पहले वो मेन मेथड को रीड करेगा। ठीक, मगर जैसे कि आपका जहन बने कि कंपाइलर को ऊपर लिखते हैं तो क्यों नहीं नीचे जा रहा है, तो ऐसे भी कह सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर जो आता है वो चेक करता है कि मेन मेथड है कि नहीं है, तो पहले डेफिनेटली क्लास इस तरीके की वो एरर सारी जनरेट करके एट अ टाइम दिखा देता है। तो फिर कहने का मकसद ये कि यहाँ पर मेन मेथड आया, पे कंपाइलर आया, चेक किया, उसने देखा कि नीचे एक और चीज भी दी गई है, वो है कोई आप क्लास बनाया गया है, ठीक है, उसका नाम लिखा है हमने। उसके बाद देखा कि एक और चीज दी गई है, ऑब्जेक्ट के जरिए किसी टॉक मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पर कॉल करना कैसे, अगर मैं आपसे बेटा कॉल कैसे किया जाता है किसी मेथड को, तो यू कैन से कि ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट होता है और किसी मेथड का नाम दे दें, कॉल हो जाएगा। ठीक, मगर जैसे यहाँ पर आया, कंपाइलर ने कहा मेरे पास ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, इसको देखा ना, इसको देखा और भागा ऊपर, बोला कि ये तो टॉक है, मगर क्योंकि इनसाइड तो इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, और जबकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दिस इज पॉसिबल ना, इज दैट हैपनिंग ना, कि उधर जो वहां पर ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज कमिंग विद समथिंग, है ना, ये तो पैरामीटराइज है, पर यहाँ पर जो कॉल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, शाबाश, नॉन पैरामीटराइज, ऐसा ही है ना, ऐसा ही हो रहा है, नॉन पैरामीटराइज कॉल हो रहा है जी। तो ये बोलेगा कि जो डेफिनेशन है आपकी वो रॉन्ग है, वो कंप्लीट इज रॉन्ग। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। सर माइक ऑफ हो गया आपका। हाँ मैंने माइक ऑफ किया, थोड़ा वेट करें। यस बेटा, उम्मीद करो आवाज आ रही है। ओके, सो नाउ एज आई टोल्ड यू कि दिस अपर टॉक मेथड कंटेन विद समथिंग इनसाइड इट, और व्हेन वी आर कॉलिंग इट देयर नथिंग इनसाइड इट। ठीक है, तो वो कंपाइलर बोलेगा कि भाई ये एरर है, क्या है ये एरर है, ठीक है ना। तो बुला रहे हो, वो मेथड भी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए थे, तभी जाके तुम इसे सही तरह बुला सकते हो। इसको बुलाना है तो आपको सही तरीके से नीचे लिखना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वैसे एरर नहीं है, वैसे लिखने का तरीका सही है, मगर क्योंकि आपने ऐसा कोई मेथड बनाया ही नहीं है, तो इसको कॉल कैसे कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ तो फिर आप सर, हाँ जी बेटा। ये जो सर वर्ड में टॉक में हमने स्ट्रिंग नेम लिखा हुआ है, अब ये नॉन पैरामीटराइज है, जो इसमें भी अगर हम स्ट्रिंग नेम लिखें तो वो आगे आउटपुट में हमें क्या दिखाएगा? जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर तो आपने कॉल किया है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर जब आपको उसको कॉल, यहाँ पर आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले यह तो समझ में आ गया। हम चाहें तो दूसरा मेथड बनाएंगे टॉक के साथ, वही ठीक है, टॉक के साथ बना सकते हैं, ठीक है, वही, और इस तरह अब लिखेंगे ना। अब ये किसको कॉल करेगा, अब ये इसे कॉल करेगा, ऐसा ही होगा ना। अब ये इसे कॉल करेगा, बोला ठीक है इसको कॉल करो, ठीक है, क्योंकि ये तो मेथड वाले को छोड़ देगा, उस बार छोड़ देगा, बोलेगा ये टॉक का है मगर ये पैरामीटराइज है, इसको छोड़ दो। शायद जो है इसको बुलाना चाह रहा है कंपाइलर, ठीक है, इसको बुलाना चाह रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको बुलाना चाह रहा है, तो ये इसकी सिग्नेचर मैच हो जाएगी, फिर तो चल जाएगा। अदरवाइज इसके लिए तो डेफिनेटली एरर ही देगा। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इस मेथड को कॉल किया जाए। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर मुझे इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डालना पड़ता है। ठीक, क्या करना पड़ता है यहाँ पर, आई हैव टू इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमने कहा था कि हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन की है, तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगी। जो वैल्यू हम यहाँ पर देंगे, कुछ जो भी लिखेंगे वो इसकी वैल्यू बन जाएगी, इस नेम की क्या बन जाएगी बेटा, वो वैल्यू बन जाएगी। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इन हियर, मैं यहाँ पर वैल्यू इस तरह लिखूंगा, ठीक है। तो कंपाइलर बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, आप जो है ये नेम इक्वल टू इमरान ना लिखें, डायरेक्ट वैल्यू दे दो। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू दे दो इमरान, कोटेशन में। क्यों कोटेशन में दे रहा हूं,
क्योंकि कोटेशन में ही स्ट्रिंग को लिखा जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? नेम इज इक्वल टू इमरान लिख लें, कोटेशन में नेम, इमरान लिख लें। अगर आप नेम लिखोगे तो बोलेगा ये नेम क्या है, कंपाइलर बोलेगा ना बेटा ये नेम क्या है, ये नेम कहाँ से आया, ये नेम जो है वो क्या है, वो नहीं समझेगा इस नेम को, बोलेगा ये नेम जो है वो मैं नहीं समझूंगा इस अगर चीज से। फिर ऑब्जेक्ट सर दें स्ट्रिंग नेम इज इक्वल हाँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, नेम दें इज स्ट्रिंग इक्वल टू नेम, इमरान दे, फिर कोटेशन स्ट्रिंग में खा सिर्फ ये भी कर सकते हैं ना। स्ट्रिंग नेम दोगे तो वो कहेगा कि मेरे पास जो है इस तरीके की जावा ने मेंशन ही नहीं किया, जावा ने कहा है कि इस तरह आप कोई मेथड अपनी तरीके से नहीं दे सकते, या तुम बोलो कि मैं सेमीकोलन भी दे दूं, ठीक है, क्योंकि हमेशा सेमीकोलन दिया जाता है, या मैं क्या करूं, आपने कहा कि मैं ऐसे कर सकता हूं सर, एक स्ट्रिंग नेम लिया, ठीक है, और जो है एक और स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, इमरान कर दिया, इस तरह मैंने इस तरह मैं दे दूं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है इन डिक्लेरेशन आप हमेशा किसी मेथड के अंदर करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, अदरवाइज क्या हो रहा है यहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन भी करे, डिक्लेरेशन भी करे, सही हो रहा है ना, यहाँ पर आप इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हो और डिक्लेरेशन भी हो रही है, यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हो रही है, आपने कहा कि मैं ऐसे क्यों नहीं कर लेता, मिसाल तौर मैंने यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और मैं ऐसे कर लेता हूँ, मिसाल नेम इक्वल टू इमरान, मैं ऐसे कर लेता हूँ, बात समझ में आ रही है, मैं ऐसे कर देता Yes, sir. हूँ, ठीक है, तो अब ये तो हमारी अपनी सोच है ना कि ऐसे कर लें तो बेटर है, मगर जावा ने कहा नहीं नहीं आपको इस तरह नहीं करना है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरे रूल्स चलेंगे, ठीक है, आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको ये चीज लिखनी है, डिक्लेरेशन करनी ऊपर है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लगानी है, डायरेक्ट क्या लगानी, वैल्यू, ठीक है, जो वैसे जैसे आप क्या करना था, आप वैसे क्या करते हैं, आप इक्वल की साइन देते हैं और कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये इक्वल जो है वो मैं खुद ही कर लूंगा, आप सिर्फ उसकी वैल्यू दे दो, तो वैल्यू आपने क्या कर दी, वैल्यू जो है आपने जो है वो सिर्फ मेंशन कर दी इसके अंदर, ठीक है, आपने कर दिया डायरेक्ट वैल्यू, तो ये कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यू लेने का, बात नहीं आ रही है, सर ये सिर्फ असाइन करेगा। हाँ यहाँ पर सिर्फ उसे असाइन भी करेगा और वैल्यू भी हम दे देंगे, ठीक है, दोनों ही काम होगा, असाइन भी ऑटोमेटिक हो जाएगी और वैल्यू सिर्फ देने से वो उसको पार्ट बना देगा, किसका, उस वेरिएबल का जो हमने डिक्लेयर किया था मेथड में, ठीक, ठीक है तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये भी काम कर सकते हो, अगर आपको कहना आप चाह रहे हो कि मैं कोई ना कोई लिखूं, ठीक है, तो आप पहले स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है, आप मेथड पहले बना दो, कोई नाम लिख दो, डेटा टाइप, और अब वैल्यू किसमें पड़ी हुई है, सर नेम में पड़ी है। अब पड़ी, अब यहाँ पर अगर आपने लिखा नेम और इमरान तो मसला नहीं, बोलेगा ठीक है, इससे तो चाहिए थी कोई वैल्यू, अब वैल्यू किसमें पड़ी हुई है, नेम में पड़ी हुई है ना, हाँ ऐसे ही पड़ा है ना, तो फिर आप इसमें नेम डाल दो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तब भी बोलेगा ठीक है, क्योंकि इसको वैल्यू चाहिए, इससे वैल्यू वो निकाल लेगा, बात समझ में आ रही है, जी सर। जी सर। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी या फिर किसी वेरिएबल में भी डाल दी, ये भी कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल है जावा के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो डायरेक्ट जो भी आपने लिखा था मिसाल, वो क्या हो जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा, मिसाल तौर यहाँ पर आपने लिखा था इमरान, ओके, तो कंपाइलर आएगा, इसको रीड करेगा, इट रीड टॉक मेथड एंड देन सी द नेम कंटेंट्स इमरान, तो ये चला जाएगा इमरान यहाँ पर, ऐसा ही है ना, ये इमरान यहाँ पर चला जाएगा और स्क्रीन पे क्या लिखा होगा, इमरान कैन टॉक, ठीक है, समझ में आ रही है बात, कैसे ये हुआ, यस जी सर। सर। जी सर। ओके बेटा, और जो स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ रहा है, अमरान, लबीद और जो है जैनब सिस्टर, ओके, अवेश, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, सर एक सवाल था सर। जी बेटा बोल रहे हैं, सर ये जो आपने ऊपर जो वाइट टॉक वाला जो मेथड यूज किया स्ट्रिंग को नेम लिख के इसके अंदर, तो हम इसके साथ सेमीकोलन वगैरह या इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते? भाई सेमीकोलन कैसे लगाओगे, क्योंकि डिक्लेयर, एक तो मैंने कहा कि डिक्लेरेशन हो रही है, बस सिंपल, ठीक है। अच्छा एक मिसाल ये समझ गए, अगर अगर हमने नीचे जो है जो नाम जो हमने नेम लिखा था इज इक्वल टू इमरान, नेम की जगह अगर कुछ और नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर माय नेम या कुछ भी वॉच वगैरह कुछ भी लिख दें,
तो स्ट्रिंग के साथ फिर वही नाम आएगा। हाँ वही नाम आएगा, वही नाम। बस ठीक। ठीक है, एक और तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर इस मेथड को हम स्कैनर में अब कैसे यूज कर सकते हैं, तो यू हैव टू राइट जस्ट स्कैनर मेथड, स्कैनर क्लास, ओके, वही से तरीका, ठीक है। और वो वैल्यू अब किस में जाएगी, जो भी आप इनपुट पे देंगे, कुछ भी वट एवर यू गिव इन द कंसोल, इट विल स्टोर इन दिस मेथड, ओके। अब आप नेक्स्ट मेथड के बाद वो वैल्यू आ जाएगी, वो क्या कर देंगे हम नेम के अंदर वो पुट कर देंगे, सही होगा ना। जो भी आप लिखोगे स्क्रीन पर, अब वो कहाँ हो जाएगा, वो इनपुट मेथड के जरिए, ये जो नेक्स्ट मेथड के जरिए वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। और वो वैल्यू अब किससे साइन मिल जाएगी, इस नेम को मिल जाएगी। तो अब ये प्रोग्राम जो बन गया वो डायनेमिक बन गया, मतलब जो यूजर लिखेगा वो नाम के साथ लिखाएगा कैन टॉक, ऐसा ही होगा, जी सर। ऐसा ही जी होगा सर। ना। जो भी अब स्क्रीन पे लिखूंगा, जी। मैंने इमरान लिख दिया तो लिखा है इमरान कैन टॉक, अगर मैंने जहीर लिख दिया तो जहीर कैन टॉक, ठीक है। पहले फिक्स हो गया हुआ था, पहले क्या था कि फिक्स था, ठीक है, बार बार प्रोग्राम के अंदर चेंज करना पड़ता, मुझे प्रोग्राम को अंदर चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ कंपाइल करता रहूंगा, रन करूंगा, और जो है मेरे पास जो, या मैं एक बार मैंने रन कर दिया, बस बार बार मैं सिर्फ एक बार मैंने कंपाइल कर दिया, फिर दूसरी बार जब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, तो मुझसे डिफरेंट नाम लेते हुए उस तरीके के आउटपुट दिखाता जाएगा, ऐसे ही है ना, नाम चेंज करता जाएगा मेरी मर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट स्कैनर क्लास को भी यूज करते हुए, तो हो सकता है आप बोलते हैं स्कैनर क्लास कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें, आप चाहें तो इस यहाँ पर यूज करें, आप चाहें तो यहाँ यूज करें, पर जब यहाँ यूज करोगे तो तरीका मतलब कॉन्सेप्ट कोई दूसरा होगा, समझाओ। यहाँ पर यूज करेंगे तो आपने पहले ही इनपुट ले लिया, और अगर आप पहले इनपुट नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि ये मेथड के अंदर, मिसाल अब देखिएगा बेटा, ठीक है, मेथड के अंदर जाके ये सारे स्कैनर यूज हो, तो आप इस मेथड को सिंपल कॉल करवा लेंगे, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। अगर यही मेथड आप यूज करना चाह रहे हैं उसी तरीके से जैसे मैंने अभी यूज किया है, तो आप क्या करेंगे, ये स्कैनर लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा होगा, और फिर कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसमें स्टोर करवा लेना, तब भी वही बात होगी ना, क्योंकि मेथड के जैसे अंदर आया स्कैनर चला, और यहाँ पर वो जो भी वैल्यू आएगी वो नेम के पास आ जाएगी, और इस तरीके से भी जो है वो डिफरेंट नाम एग्जीक्यूट होते जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा। ये हाँ, ये चीज जो है मैं अगर इनसाइड इसके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा इनपुट डॉट नेक्स्ट, ओके, एंड व्हाट विल हैपन, जो भी ये मेथड जैसे ही चलेगा, क्योंकि ये मेथड अब नॉन पैरामीटराइज, ये डाल सकते हो, पैरामीटराइज भी डाल सकते हो, ठीक है, मगर कहने का मतलब अगर ये नॉन पैरामीटराइज है तब भी इस मेथड के अंदर आ जाएगा, ऐसे होगा ना, अंदर आएगा और देखेगा एक मेथड चल रहा है, क्लास चल रहा है, वो क्लास चला देगा, और फिर एक इनपुट लिया जा रहा है तो इनपुट दे देंगे, अब अपने क्या कहते हैं स्क्रीन पर जो भी इनपुट दोगे वो वही टाइप का नाम या स्टोर हो जाएगी वैल्यू, और लिखा आएगा इमरान, अगर आप चाहते हो जहीर तो जहीर, जो भी आप टाइप करोगे जहीर, ठीक है ना, तो जहीर आ जाएगा। अगर आपने फिर कंपाइल किया और फिर आपने रन किया, लिखा इमरान तो इमरान आ जाएगा, फिर आपने लिखा वकास तो वकास आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ये भी डायनेमिक बन जाए, तो तरीका आपको है, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको बस पता हो कि ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हमने मेथड के अंदर कैसे लिखा जाता है, नॉन पैरामीटराइज तो कॉल कैसे किया जाता है, ये हमने सीखा, और मैंने आपको इसमें अंदर सिखा दिया कि जो है वो किस तरीके से इसमें अंदर जो है स्कैनर क्लास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है डिफरेंट टाइप के मेथड बनाए जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसा समझ में आ रहा है। जी सर। जी सर। ओके, तो ये तरीका भी, हाँ, तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल मैंने यही किया है सिर्फ कि मैंने पहले मैसेज लिख दिया ऊपर, ठीक है, लिख दिया कि फेसबुक चैटिंग, ठीक है, सॉरी चैटिंग की स्पेल मैंने डबल टी देना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक है, तो फेसबुक चैटिंग यूजर नेम, तो यहाँ पर क्या होगा मुझे कौन बताएगा, आंसर में क्या होना चाहिए यहाँ पर सर वकार कैन टॉक। जी, स्कैनर कॉल इजी, ठीक है, आपने कहा इजी है, शाबाश। हाँ, तो क्या लिखाएगा, शाबाश, वकार कैन टॉक, ठीक है ना, हाँ वकार कैन टॉक, ठीक है, इस तरीके का मैसेज आएगा, वकार कैन टॉक, जो भी आप लिखना चाहें, वकार राइटिंग अगर आपने लिख दिया तो वकार राइटिंग लिखाएगा, कि टॉक के बदले आपने लिखा राइटिंग तो लिखाएगा वकार इज राइटिंग, ठीक है ना, वकार इज राइटिंग, तो आपको पता है राइटिंग, इस तरीके से काम चला सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं।
तो हमने सीख लिया आज का और ये बेस करता है जी जी सर जी बेटा बोले। सर ये पिछली स्लाइड खोलना एक दफा। सर ये जो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के बाद जो नीचे जो ह्यूमन ब्रेन, माय ब्रेन, न्यू ह्यूमन ब्रेन, ये जो लिया गया, ये सब मेथड का हिस्सा है ना सर? कौन सा बेटा फिर से बोलना। ये जो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जो मैन फंक्शन होता है, हाँ इसके नीचे जो आपने ह्यूमन ब्रेन लिखा है, जो क्लास का नाम लिखा है, हाँ ये मेथड लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप कह रहे हैं माय ब्रेन, ये कह रहे हैं ये वाला माय ब्रेन। हाँ, ये पूरी लाइन जो आपने लिखी है हाँ मैंने मेथड आपको के लिए। हाँ अगर आपको क्लास के मेंबर ठीक है एक्सेस करने ना, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्लास ऑब्जेक्ट सिखा रहा हूँ ठीक है। तो आप इस क्लास के मेंबर जो है वो कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो ठीक है। तो वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अब ऑब्जेक्ट के जरिए। अगर आपने बहुत सारे, क्योंकि अभी तो हमने एक बनाया ना, अभी तो मैं आपको एक बनाया है, अभी तो आपको जो है पूरी क्लास आपके स्टूडेंट का मैंने जो पूरा क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अब आपको लिखना करना है आगे। जैसे जैसे मैं इसको कंप्लीट करूंगा आप स्टूडेंट लिखोगे ठीक है। मैंने बोलूँ भाई स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाओ तो आप स्टूडेंट लिखोगे, उसके नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उसका ईमेल होगा ठीक है। तो ये तो बेसिक जो काम है किस बच्चे के, ये तो आपने उसके एट्रीब्यूट बता दिए ठीक है कि ये इसका रोल नंबर है, ये इसका एड्रेस है। अब उसके एक्शन बताओगे तो मिसाल तो भाई ये जो है वॉक कर सकता है या चल सकता है या जो है पढ़ सकता है, ये फला फला काम भी स्टूडेंट कर सकते हैं ठीक है। तो कहने का मकसद है कि कुछ एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट के साथ कुछ एक्शन डालोगे तो ये जो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम बनता जाएगा। जब ये ज्यादा प्रोग्राम बनेगा अब उस मेथड को कॉल करवाना है पर्टिकुलर टाइम पे। भाई इसने फीस नहीं भरी तो एक मेथड होगा हम चलाएं, दूसरा मेथड रखेंगे भाई फीस जो ना भरे वो मेथड चला दो। तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले। हर इतने सारे हम ऑब्जेक्ट क्या कर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो बना रहा है माय ब्रेन, उस ब्रेन का बनाने का मकसद है कि हम किस क्लास के जो और एट्रीब्यूट जितना बड़े बनते जाएंगे ज्यादा तो हम उसको एक्सेस करें, उसको इस्तेमाल कैसे करें, उसको कैसे कॉल करें। तो ये जो माय ब्रेन है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल बनेगा उस मेथड को बुलाने के लिए ठीक है, कॉल करने के लिए। बात समझ आई कि ये मेथड अब तरीका है कि उस मेथड को या उस फंक्शन को कॉल करने के लिए या उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए। तो अभी तक हम ये समझे कि ये जो हम मेथड बना रहे हैं ठीक, और ये जो हम क्लास बना रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पूरी की पूरी लाइन